We will all first start the program by singing of the national anthem. 700 kilowatt power solar power plant at Guwahati railway station, and inauguration of first class and second class waiting halls at Harmuti station, RO plant and digital chart display system at New Tinsukia station by Shri Suresh Prabhakar Prabhuji, Honorable Minister of Railway. The chief guest for today's program is Shri Banwarilal Purohit ji, Honorable Governor of Assam, in the august presence of Shri Rajen Gohai ji, Honorable Minister of State for Railways. His Excellency Shri Banwarilal Purohit ji, Honorable Governor of Assam, chief guest for today's function. Shri Suresh Prabhakar Prabhuji, Honorable Minister for Railways. Shri Rajen Gohai ji, Honorable Minister of State for Railways. Shri Vishwanath Demari ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Shri Siddharth Bhattacharya ji, Honorable MLA Assam. Shri H.K. Jaggi, General Manager Construction, NF Railway. Shri Satish Agnihotri, CMD RVNL. Members of press and electronic media present here, ladies and gentlemen. I have great privilege to welcome you all to this august gathering, wherein a large number of amenities and projects will be inaugurated by Honorable Minister for Railways in the state of Assam. The first project is commencement of work of electrification of Raninagar Jalpaiguri Guwahati section. The estimated cost for this project is 646 crores and it is to be planned to be completed by March 2020. In fact, all the main line of NF Railway has now been sanctioned for electrification right from Katihar to Tinsukia. Another facility which will be inaugurated today is 700 kilowatt solar power plant at Guwahati railway station, which will produce 2,554 kilowatt hour per day, which will lead to a saving of about rupees 60 lakhs per year. This facility is being commissioned at a cost of rupees 7 crores. Harmuti station, which is the gateway to Arunachal, 2 waiting halls, first class waiting hall and second class waiting halls are being inaugurated, which will provide all possible amenities for traveling public like sitting area, toilets, wash basin, etc. We have laid a great emphasis on pure drinking water to our passengers. In that direction, a RO plant is being inaugurated today at Tinsukia. The water will be supplied free of cost to all the passengers. At the same stations, we are also going to inaugurate today a digital chart display system which will eliminate the use of paper, thereby providing more sustainable environment. Under the able leadership of our Honorable Minister for Railways, NF Railway is committed to provide safe, punctual, clean and comfortable journey
to all our passengers of NF Railway. Thank you very much. अब मैं विनती करूंगी माननीय रेल राज्य मंत्री श्री राजेंद्र गोहाई जी से कि इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। मैं सुरेश प्रभु डांगरिया, हम जरूर सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होने का बावजूद वो यहाँ आके खुद आज ये सारे काम करने के लिए आ गया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की और आनंद की विषय है। प्रभु जी ने बहुत कुछ किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और आज भी मैं अगर कुछ कर पाया तो प्रभु जी का कारण ही ये संभव हुआ। प्रभु जी ने जो भी करना चाहता हूँ किसी काम पे कभी माना नहीं करा है, हमेशा हमें उत्साह देते, करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी सोचते हैं। तो मैं एक बार उनसे एक रिक्वेस्ट भी किया था, उनको मालूम भी है, क्योंकि हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन रीजन, यहाँ बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ है नहीं, तो ये बेरोजगारी को कैसे संभाला जाए। तो रेलवे में काफ़ी हद तक मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसको मैं उनको एक बार मैंने विनती किया था और उन्होंने ये विषय को बहुत सीरियसली सोच भी रहा था और कहा भी था। जहाँ आसाम नॉर्थ ईस्ट नक्सल अफेक्टेड एरिया और जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग सा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है, अगर इस विषय में इतना सारे कुछ करके उन्होंने दिया है आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो अगर ये करके देगा तो हमारा हमेशा के लिए पेट भर जाएगा और कोई कुछ चाहिए नहीं। तो मेरा विश्वास है प्रभु जी जरूर करके देगा हमें, और यहाँ का लोगों का ये बहुत बड़ा आशा और उम्मीद है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ ये हमेशा वही हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है। जो भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो आमार बहुत दरकार आছিলে, तो आमार बहुत दिन पुरानी डिमांड आছিলে, और ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हले डिजेल कनजाम्पशनो कम है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शनो है। तो ये काम तो शुभारम्भ रानी নিউ জলপাইগুড়ি और गुवाहाटीर मजत शुभारम्भ हम इतिमध्ये काम एवार्ड करा हो गई। यार द्वारा आमार ट्रेनबिलाको यथेष्ट फास्ट मुविंग हम, সেই হিসাবে आमार यथेष्ट आमी पांक्चुअलिटी क्षेत्र आमी यथेष्ट इम्प्रुव কৰিবলৈ सक्षम हम। बाकी प्रजेक्टकेटार कथा কৈছে, जितो डिजिटल डिसप्ले चार्ट সেইটো এটা নতুন বস্তু আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ ইয়াত মানে তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, তিনিচুকীয়াত দুটা বস্তু আৰম্ভ হ'ব, ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছৰ ৱাটাৰ প্লেণ্ট, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্লেণ্ট। এইটো এটা বৰ ভাল বস্তু ৰাইজে পাব, যিহেতুকে কিনি খোৱা বটল আৰু ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছৰ পানীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই আৰু ফ্ৰী অফ কষ্ট পাব। এই হিচাপে হাৰমতিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ দুটা ৱেইটিং হলৰ আজি উদ্ঘাটন হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি যিহেতুকে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেল যথেষ্ট কমিটেড, সেই হিচাপে ইয়াত 700 কিলোৱাটৰ যি সোলাৰ এনাৰ্জি প্লান্ট বহোৱা হৈছে তাৰো আজি উদ্ঘাটন হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনত প্ৰায় 90,000 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে, আৰু ইয়াৰ উপৰি বহুতো নতুন নতুন লাইনৰ ছাৰ্ভে কৰা হৈছে। আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত যাতে চুকে কোণে ৰেলৰ কানেক্টিভিটি আমি বঢ়াব পাৰোঁ বা দিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ত আমি লাগি আছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰভুজীয়ে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আৰু যথেষ্ট ছাপোৰ্ট দিছে। ইমান ছাপোৰ্ট আমি কোনো কালে কেতিয়াও আগতে দেখা পোৱা নাছিলোঁ।
যেনেকৈ আমাৰ বিশ্বজিতে কৈছে যে শুৰুৱাত কৰিলে কেতিয়া হ'ব তাৰ কোনো অন্ত নাই, কিন্তু আমাৰ এতিয়া দেখা গৈছে শুৰুৱাত কৰিলে তাক বস্তুটো ব্যৱহাৰ উপযোগী হোৱাকেও আজি মানুহে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাক দিছে আৰু যথেষ্ট দিছে, আৰু আমি সকলোৱে মিলি এইখিনি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আৰু মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, পুনৰ এবাৰ প্ৰভুজীক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই নহওক তেখেতে আহি আমন্ত্ৰণ কৰিলে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হয়। তেখেতৰ উপস্থিতিও আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আৰু যথেষ্ট গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সেইপিনৰ পৰা আমি সুখী আৰু তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वह इस यादगार अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। देश को, समाज को मार्गदर्शन करने वाले भूतपूर्व मंत्री सांसद बनवारीलाल पुरोहित जी, मेरे रेल में मेरे साथ में काम करने वाले और सही माने में पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी जान से, लगन से काम करने वाले राजेंद्र गोहिन जी, राज्यसभा में मेरे साथी विश्वजीत दायमारा जी, विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, रामेंद्र नारायण कलिता जी, चैतराम जी, जग्गी जी, सतीश अग्निहोत्री जी, इस कार्यक्रम के लिए मौजूद रेल परिवार के, मीडिया के और बाकी सभी सम्मानित भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक बार असम में आकर यहाँ की पायाभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और एक काम करने का मौका हमें मिला। इसके लिए यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी समय से कोशिश की है कि हमारी जो 8 बहनें हैं, जो सिक्किम से जुड़कर 8 बहन बन जाती है, ऐसी बहनों के लिए भी सही माने में विकास का एक नया रास्ता खुलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं। पूरे विश्व का ग्रोथ सेंटर अभी आसिया बनने वाला है, और उसमें भी ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये 3 रीजन में सबसे ज़्यादा विकास होने की संभावना सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो हमेशा कहते आए हैं। तो यदि हमारे देश को नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट एशिया जाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए हमारा जो गेटवे है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हमारी ये पूरी संभावनाएं पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ हमारे पड़ोसी लोगों ने इस बात को ख्याल में रखते हुए उन्होंने भी अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। वो पूरी मात्रा में अलग अलग तरीके से नई ओल्ड सिल्क रूट को भूल के नए सिल्क रूट भी बनाने के लिए उन्होंने काम करने की शुरुआत की। तो मुझे लगता है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि नॉर्थ ईस्ट को विकसित किया जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन साथ में देश का भी विकास होगा। और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए लगातार हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, उससे मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है। जैसे आप देखने जाए तो हमारे कुछ सालों में ही करीबन 5,600 करोड़ रुपया सिर्फ 17-18 में नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया। 163% मोर देन एवरेज अमाउंट that was spent during 2009 to 2014, which was the last 4-5 years of the previous government. इसी साल में हम लोगों ने 7,118 करोड़ रुपए की 16-17 में यहाँ पर खर्चे किए गए, और वो भी आप किसी की तुलना में देखते जाते हैं तो 2,879 करोड़ जो पहले हुआ करता था उससे भी बहुत ही ज़्यादा है। इस साल में बड़ी मात्रा में यहाँ पर 19,000 crores have been spent in the last 3 years
which is 202 times higher than any average of any previous year. So 19,000 करोड़ रुपये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने पिछले 3 साल में निवेश किया और उसका नतीजा आने वाले दिनों में भी मिलेगा। आज भी हम दिखाई दे रहे हैं। उसी साल में हम लोगों ने पूरे ब्रॉडगेज में, अभी नॉर्थ ईस्ट में एक भी मीटर गेज लाइन नहीं है, सबका सब ब्रॉडगेज में कन्वर्जन हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे देखा जाए तो पूरे देश में हम लोगों ने इसके तरफ काम करने की शुरुआत की है। इस साल में मुझे कहने के लिए खुशी है कि हम लोगों ने जितने भी मीटर गेज लाइन थी उसको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने मान्यता दी थी। ऑल मीटर गेज लाइन्स विल बी कन्वर्टेड टू ब्रॉडगेज एंड द डिसीजंस हैज ऑलरेडी बीन टेकन एंड द लाइन्स हैव बीन सैंक्शन। उसी तरह से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे का, वो सालाना 45,000 के आसपास हुआ करता था, उसमें भी बढ़ोतरी करके पूरे देश में पिछले 2.5 सालों में ही 3 बजट में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। साथ ही में हम लोगों ने जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी बहुत धीमी तरह से चल रहा था, उसको भी गति लाने का काम किया है। और कल ही मेरे पास वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी जोर लगाकर फर्स्ट फेज 2018 दिसंबर तक पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय में पूरे देश में जो ब्रॉडगेज लाइन थी, मीटर गेज लाइन थी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। जो सिंगल लाइन थी उसमें डबलिंग करेंगे, डबलिंग की वहाँ जरूरत है वहाँ पे ट्रिपलिंग करेंगे। यानी पिछले 2.5 सालों में 16,500 किलोमीटर डबलिंग करने के सैंक्शन करने को हमने मान्यता दी। 16,500 किलोमीटर, जो पहले तो सरकार के तुलना में, पहले सरकार छोड़िए 70 साल में हम लोगों ने सिर्फ 20,000 से ज़्यादा कुछ डबलिंग किए थे। वो 16,500 किलोमीटर हम लोगों ने तय किया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे आगे, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं तो ब्रॉडगेज अभी सब जगह मीटर गेज का ब्रॉडगेज हुआ गया, लेकिन यहाँ तो हो चुका है। पहले बात ऐसे होती थी कि हर जगह में होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में आते थे, यानी बारिश यहाँ से शुरू होती है, सूरज यहाँ पर उगता है, लेकिन सबसे लास्ट हमको पैसा मिलने का, कोई नए काम बनने की बात नॉर्थ ईस्ट में सबसे एंड में होती थी। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे सनसेट भी बहुत जल्दी होता है, तो शायद उसीलिए सबसे लास्ट यहाँ पर लेके आते थे। लेकिन हमने इस बात को बदला और जिस सनराइज के तरह यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, ये सोचकर नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। तो आज अलग अलग काम किए जा रहे हैं। इसमें विद्युतीकरण का काम ग्रामीण नगर टू जलपुगोरी तक किया जाएगा। उसमें करीबन 646 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी। उसी तरह से पूरी एंटायर मेन लाइन सेक्शन ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे विच इज मोर देन 1,102 किलोमीटर्स which has been sanctioned at a cost of 1,432 करोड़ सॉरी। मुझे कहने के लिए खुशी है और गवर्नर साहब ये चाहते हैं कि हम लोग सही रास्ते पे चले, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में सही रास्ते पे खुद चले हैं, तो उनकी अपेक्षा सही है। इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि आप जनता के प्रति नहीं, पूरे विश्व की जनता के प्रति भी ध्यान रखते हुए सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे कहने के लिए खुशी है कि पूरे देश में अब तक सिर्फ 42% विद्युतीकरण हो चुका है। इतने सालों में विद्युतीकरण जब से शुरू होगा, कुछ दशकों पहले, वहाँ से लेकर आज तक सिर्फ 42% विद्युतीकरण हुआ है। हमने इस साल में निर्णय किया कि अगले 5 सालों में जो आज विद्युतीकरण है उसको डबल करेंगे, यानी पूरे 5 साल में जो इतने सालों से हुआ था अगले 5 साल में किया जाएगा। उसके लिए करीबन धन की जो जरूरत थी वो भी हो चुके, और साथ ही में हम लोगों ने नए नए एजेंसीज को इन्वॉल्व करके कॉन्ट्रैक्ट देने की भी शुरुआत कर दी है। तो एक सोचिए, इसका एक लाभ होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने के कारण एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, और साथ ही में पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और जैसे मैंने कहा कि जो भी ब्रॉडगेज है वो तो पूरा विद्युतीकरण हो ही जाएगा, क्योंकि डबलिंग उसके साथ किया जाएगा। लेकिन जो मीटर गेज है उसका भी कन्वर्ट करने का निर्णय किया। तो जैसे जैसे मीटर गेज का ब्रॉडगेज में किया जाएगा, साथ ही में उसका भी विद्युतीकरण उसी समय किया जाएगा।
यानी सिर्फ कुछ नैरोगेज लोग छोड़ेंगे, नैरोगेज लाइन छोड़ेंगे तो सभी का सभी विद्युतीकरण हमारे देश में आने वाले 5 साल में, और उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि जो गेज कन्वर्जन का काम चलेगा उसमें पूरा करने के लिए हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। उसी तरह से आज हम लोग सोलर प्लांट को भी कमीशन करने जा रहे हैं। मुझे कहने के लिए खुशी है कि 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी निर्माण करने के लिए रेल प्रतिबद्ध है। उसके लिए भी काम की शुरुआत की गई है और उससे भी हम लोग पूरे देश में 1000 मेगावाट सोलर करेंगे। यानी एक सिंगल जनरेटर ऑफ सोलर एनर्जी रेल देश में सबसे बड़ी जनरेटर ऑफ सोलर एनर्जी रहेगी। उसी साथ साथ जो भी हमारे एलईडी लाइट्स है उसको एलईडी लाइट्स को भी हम जो अदर लाइट्स है उसको एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हर जगह पर एनर्जी एफिशिएंसी का पैरामीटर्स लगाया जा रहा है और साथ ही में एनर्जी ऑडिट भी किया जा रहा है। इसका सबका नतीजा यह होगा कि आने वाले 10 साल में रेल 41,000 करोड़ रुपए का एनर्जी में सेविंग करेगी। और ये फिगर कहाँ से आई? कोई जादू टोना करके तो नहीं निकाली गई। हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने निकाली। उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि हम लोगों ने जो 4,000 करोड़ रुपया सेव किया पहले 1.5 साल में, उसका एक नतीजा है कि अगले 10 साल में हम लोग इसका भी सेविंग करेंगे। डीजल कंजम्पशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन हम लोग जो ले रहे हैं उसके भी हम लोग नबीनगर में एक रेलवे का प्रोजेक्ट, मुझे कहने के लिए खुशी है कि नबीनगर का प्रोजेक्ट रेल ने जो लिया, उस समय मैं था ऊर्जा मंत्री और मैंने उस समय के रेल मंत्री को जाके विनती की कि आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उस समय मेरी चिंता अलग थी। पावर जनरेशन के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा रेल का इतना पावर लगता है तो आप मेरे साथ में, हमारे साथ एनटीपीसी के साथ में समझौता करके लगा दीजिए। उस समय बात मानी गई। आज वो उसका भी जल्दी कमीशन किया जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम खरीदते थे, जब मैं मंत्री बना गवर्नर साहब, तो मुझे बताया गया कि 15% हर साल हम लोग बजट में प्रोविजन करते थे बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा आप किसी को कहेंगे, सब्जी वाला आने वाला है आपके घर में, आप सब्जी वाले कहेंगे कि मेरे पत्नी ने निर्णय कर लिया है कि हर दिन 15% ज़्यादा खर्चा देके आपके सब्जी खरीदी जाएगी। तो कौन सा ऐसा सब्जी वाला कहेगा नहीं बहन जी ऐसा नहीं करिए, हमको जरा 20% से कम लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा दाम आप बता रहे, कोई देगा। आप यदि बजट में प्रोविजन करेंगे तो कौन आपको कम दर्जे में देगा? तो हमने फोर्स करके कम किया। और जो हमने कहा ये कॉस्ट कटिंग हुआ, उसका कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो मैं मंत्री था उस समय हमने कानून बनाया था, उससे तहत ओपन एक्सेस का प्रोविजन एक्ट में रेलवे इज अ डीम्ड लाइसेंसी, तो हमने उसमें भी प्रोविजन किया। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अगले 10 साल में हम लोग इतना एनर्जी का सेविंग करेंगे, सोलर एनर्जी भी आएगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगी और उसका भी लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। तो गवर्नर साहब आपके आदेशानुसार, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार हम पूरी मात्रा में ये भी काम करेंगे। उसके साथ साथ आज हरमुती ये जो बहुत ही अहम स्टेशन है वो भी रेलवे में पे आ रहा है। उसके साथ में नाहरलगुन जो ईटानगर में है, इससे साथ भी उसको जोड़ा जाएगा। और आज एक पानी के लिए भी कुछ नया कार्यक्रम जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसके तहत लोगों को दिया जा रहा है। आपको याद होगा तो 15 रुपये की बॉटल रेल नीर की लेनी पड़ती, और हमेशा शिकायत ये आती है कि वो जो बेचने वाला है वो कहता है 15 रुपये क्या, आजकल 5 रुपये क्या, 20 रुपये दे दीजिए। तो ये नहीं कहता है कि 5 रुपये मेरे पास नहीं है तो कम से कम 10 रुपये में ले लीजिए, तो नहीं कहेगा। तो कहेगा 15 रुपये की बॉटल है तो 20 रुपये मुझे दे दीजिए। ऐसा भी कहना चाहिए कि 15 रुपये की बॉटल है आप 10 रुपये में ले लीजिए, तो नहीं कहता है। लोगों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी शिकायतें आती थी। हमने निर्णय किया पहली बार हमारी सरकार आने के बाद, हम लोगों ने अलग अलग जगह पर ATM, वैसे ATM कहते हैं जो पैसा निकालने को जाते हैं बैंक में, उसका सही नाम था ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन नाम बदल के एनी टाइम मनी किसी ने बना दिया, किसने हमने कहा ATM का नाम इससे भी बदला जा रहा है तो हम उसको ATM का नाम रख के लोगों को पानी कम कीमत में देंगे। तो आज यदि आपका ग्लास लेके जाते हैं, घर में बॉटल लेके जाते हैं, तो आपको 1 रुपये में भी पानी मिलेगा जो आपको 15 रुपये देना पड़ता है। और मैं जब छोटा था, मेरी माँ मेरे पिताजी मुझे ट्रेन से लेके जाते थे, हम वही करते थे, घर से पानी भर के लेके जाते थे, वो उधर फ्लास्क हुआ करता था। तो यही सुविधा दी जा रही है, तो आज ये भी नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों को दिया जाएगा। और साहब, गवर्नर साहब, मुझे कहने के लिए इस बात की भी खुशी है कि पर्यावरण की ओवरऑल रक्षा करने के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट इतना
सुंदर और पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं, इतना अच्छा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए रेल के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने एनवायरमेंट डायरेक्टेड रेलवे में खोला। और एनवायरमेंट डायरेक्ट को हमने कहा पिछले बार कि पूरे देश में जहाँ भी रेल की ज़मीन है वहाँ पर पानी, जो हमारे ओल्ड वॉल बेल्स होंगे, तालाब होंगे जो बुझ गए होंगे, क्योंकि लोग भूल भी जाते, माता पिता को भूलते तो तालाब को भूलने का कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसे जो जहाँ जहाँ भी चीज़ है उसको रिस्टोर कीजिए। माँ बाप को तो रिस्टोर नहीं किया जा सकता, कम से कम ये जो उससे भी बड़ी है, कुदरत की देन है, उसको रिस्टोर कीजिए। और हर जगह पर, ये हमारे रेल में अच्छी बात है, हम कुछ ऑर्डर देते तो इम्प्लीमेंट इमीडिएटली की करते। तो अभी मैं जनरल मैनेजर्स को पूछ रहा था, यहाँ भी हुआ है, पूरे देश में हुआ। एक ही मिसाल देता हूँ सर, हमारी जो सिकंदराबाद में जो जनरल मैनेजर है, अभी वो हमारे मेंबर बन गए, रेलवे बोर्ड में रोलिंग स्टॉक के मेंबर है गुप्ता जी, वो मुझे जब जनरल मैनेजर बता रहे थे कि आपने ऑर्डर दे दिया तो हमने कर दिया, हमको भी पता नहीं था। एक वेल 200 साल पुराना कुआं था, उसको रिस्टोर किया। हर साल रेल का 5 करोड़ रुपया पानी के कारण बच रहा है, 5 करोड़ रुपए हर साल का। यानी जो कारण पर्यावरण के लिए भी आप करेंगे तो उसका लाभ रेल को भी मिल रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी लाभ होगा। तो पानी को लेकर लोगों को पानी पीने को देना एक बात हुई, लेकिन पानी की हर समस्या को जीतने के लेके हमें काम करेंगे। वैसे आसाम में अगस्त महीने में, जुलाई महीने में अखबार खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी रहेंगे विश्व में, और कोई जर्नलिस्ट है, मेरी पत्नी जर्नलिस्ट है इसके लिए बोलता हूँ, कोई जर्नलिस्ट कोई बोलेगा आपको स्टोरी फाइल कीजिए आसाम के बारे में, तो कहीं पे बैठ के भी स्टोरी फाइल कर सकता है कि आसाम में बाढ़ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। वो न जाने बिना भी कहेगा जुलाई अगस्त में तो बाढ़ गलत नहीं होगी, बाढ़ तो आते ही रहता है, लेकिन ये बाढ़ के पानी की वजह से तबाही हो जाती है। लेकिन क्या ये पानी हम सही माने में उस समय सेव करेंगे? जो नेचुरल स्टोरेजेस है, तालाब है, रिवर्स है, हमारे उस पर करेंगे। तो उस समय मैं उसके बारे में काम करता था जब हमारे गवर्नर साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो नदियाँ जोड़ने का, लेकिन वो बात अलग बात है। लेकिन पानी को लेकर हम ये काम करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ी मात्रा में काम किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने भी शुरुआत की। आज एक काम हो रहा है डिजिटल चार्ट डिस्प्ले का। इससे पहले तो चार्ट पे क्या लिखा होता है वो टीसी छोड़ के किसी को पता नहीं चलता है, वो पढ़ेगा जैसे कि कुछ होते हैं बहुत ही क्या लिखा है हमारे धर्म ग्रंथ में, तो उनको ही जानते हैं, हमको पता नहीं चलता है, वो जो कहेंगे उसको मानना पड़ता है। उसी तरह से टीटी बताएगा वही बात है। कुछ लोग कहते थे कि ना किताब ना खाता ना बही, जो कहेंगे वही सही, तो उसी तरह से चलता था, हमको किसी को पता ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं, उनका सीट नहीं है। लेकिन वो भी उसके पास भी बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी होता है, सीट नहीं है एक को कहेगा, लेकिन दूसरे के पास देखेगा किसके कुछ जरा ठीक लगता है तो सीट तैयार भी हो जाती है। तो ऐसा काम करने के लिए भी वो काम करते थे। तो हम लोगों ने इस सभी को टालने के लिए एक तो हैंडल सबको देने की कोशिश शुरुआत की है, तो हैंडल पे पूरा चलेगा, चार्ट करने के बाद भी काम चलेगा। और अभी ये डिजिटल डिस्प्ले नेटवर्क है ये आज यहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही मैं कहता हूँ ट्रेलर है। हम पूरे देश में 2 लाख डिजिटल डिस्प्ले नेटवर्क लगाने वाले हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क होगा, और उसके रेल को पैसा भी मिलेगा। एक तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो ही गया, लेकिन साथ में हम लोगों ने जो नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टेड रेल में खोला है, उसके तहत अलग अलग तरीके से रेवेन्यू मिलने के जो हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। हमारे एक ठाकुर जी करके उसके ज्वाइन ईडी है, वो भी उसमें काम करे। तो आज डिजिटल डिस्प्ले नेटवर्क का भी काम हो रहा है। गेज कन्वर्जन के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से काम करने की हमने शुरुआत की है। उसी तरह से 26 नई गाड़ियाँ यहाँ से छुटी। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस को हरा झंडा मेरे राजन गोविंद जी ने दिखाया, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, असम की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा सांसद आपने लोकसभा में भेजा। इसके लिए राजन गोविंद जी बहुत सही मायने में काम करे, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रेल को राज्य मंत्री बनाया, तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो राजन गोविंद जी सही मायने में अच्छा जोर से काम कर रहे, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो ज़्यादा कर रहे, देश के लिए भी कर रहे, इसलिए उनको भी मैं इस बारे में धन्यवाद देता हूँ। आज एक वेटिंग हॉल का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। मैंने मेरे कुछ साथियों को रेल में बताया, आप एक काम करिए कि जहाँ जहाँ पर ऐसे वेटिंग हॉल बने हैं उसका एक बुकलेट बना के दीजिए।
बहुत सारे जगह पे ऐसे बने हैं कि लोग कहते हैं एयरपोर्ट से भी अच्छे, एयरपोर्ट के जो वेटिंग हॉल होते हैं उससे भी अच्छे। अभी रेल की समस्या यही है कि इतनी बड़ी रेल है कि आप बहुत अच्छा भी काम करेंगे तो भी लोग दिखा सकते हैं कि बहुत, आप कहेंगे स्टेशन कितना साफ है, तो लोग हमारे कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं तो बोलेंगे साफ है, जरा मेरे साथ आइए, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमको दिखाई दे रहा है कचरा गिरा है, उसने गिराया होगा। तो मैंने उसको कहता हूँ कि आपने वो कचरा आपने देखा मेरे से पहले, आप यदि उठा देते तो और साफ दिखता था, लेकिन वो दिखाने का काम नहीं करेंगे, उठाने का काम नहीं करेंगे, वो दिखाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी मैं विनती करता हूँ कि साथ में हमारे काम करिए, तो हम सब मिलके और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आज जो वेटिंग हॉल है उसका भी आप देखेंगे, उसका तस्वीर दिखने को मिल रही है, वो भी हमने करने की शुरुआत की। उसी तरह से आस्था ट्रेन सर्किट जो यहाँ से कामाख्या से लेके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक भी जाएगी, जगन्नाथ टेम्पल तक लोगों को जाने का काम मिलेगा, और मैं इसलिए उसके लिए भी सबको धन्यवाद देता हूँ। और वाईफाई फैसिलिटी जो हमने गोहती और न्यू जलपुगड़ी में शुरू कर दिए, आज मुझे कहने के लिए खुशी है गवर्नर साहब, पूरे वर्ल्ड में पब्लिक वाईफाई जो अभी 115-120 हुए होंगे, 400 तक हम जाएंगे, और उसके आगे भी एक जो हमने यूनिवर्सल यूएसओ का जो फंड है उससे भी रेलटेल को कहा है 7000 स्टेशन तक इस तरह का काम करने की हम शुरुआत करेंगे। तो एक वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हाई स्पीड वाला पब्लिक वाईफाई होगा, और इसलिए हमको उसके लिए भी रेल ने करके दिखाया, ये काम और किसी ने नहीं किया। जब हमारी सरकार आने के पहले वाईफाई था ही नहीं, तो हमारी सरकार कुछ कहते सूट बूट वाली, तो हम लोग हाईफाई नहीं है, वाईफाई सरकार है। तो उसका भी एक सबूत इस तरह से हम लोगों को देने के लिए हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। और हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि ऐसा काम पब्लिक फंक्शन में होना चाहिए। तो लेकिन पहले से हमारे रेल वाले काम अच्छा करते हैं, लेकिन वो कहने के लिए ज़रा थोड़े से झिकझिकाते हैं। तो हमने काम अच्छा किया, करने के लिए लगता है किसको क्या लगेगा, इसके लिए बोलते नहीं, लेकिन आपको करना चाहिए। अगले साल में पब्लिक फंक्शन से हम कार्यक्रम करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि लोगों को भी उसका आनंद होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका भी लोगों को पता चलना चाहिए। उसी तरह से मैंने और राजन गोविंद जी ने तय किया है, हम दोनों मिलके इसके पीछे भी पढ़े कि यहाँ के लोग इतना अच्छा, उनके पास कला का आर्ट में इसमें इतने अकॉम्प्लिश्ड है, तो ऐसे लोगों की कला पूरे देश में ही नहीं विदेश में जाने के लिए, मार्केट करने के लिए हम लोगों ने IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से उसको हम पॉपुलराइज करेंगे, ताकि यहाँ का ये गमछा भी यहाँ पे डालने के भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की अलग अलग जो कलाएं हैं वो बाहर जाके बेचेंगे तो कितना उसका दाम मिलेगा। तो यह करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ के अलग अलग जो सिर्फ आसाम ने नॉर्थ ईस्ट के पूरे देश करने के लिए हम लोग उसमें भी काम करें, ये हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन की तहत। उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो माल बनाएंगे उसको भी हम आगे आने वाले दिनों में मार्केट देने के लिए कोशिश करें। तो यहीं पे अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। तो हमारे चैतराम जी आप देखिए कि क्या वो जो खाना बनाएंगे, आसाम का खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, उसको भी हम लोग ई-कैटरिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने की है सावंतवाड़ी में, कोंकण में इसकी शुरुआत की और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। तो मुझे लगता है ये भी हम लोग, मैं और राजन गोविंद जी मिलके काम करेंगे। उसी तरह से राजन जी ने एक अच्छी काम की शुरुआत की है कि आसाम में रहने वाले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको पूरे देश में रेलवे में जो जो माल लगता है उसके लिए मार्केट मिलने के लिए वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम की भी शुरुआत हम लोगों ने गुवाहाटी में कुछ समय पहले की थी। तो इस तरह से आने वाले दिनों में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से जनता को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि रेल जनता की है, सरकार तो आपकी है, लेकिन यदि इसमें और लाभ लोगों को मिल सकता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। आज और एक अच्छी बात की शुरुआत है, प्रीफैब कहीं भी आज हमने, अभी मैं तस्वीर देख रहा था, हम लोग 2 दिन पहले, परसों ही राजन जी हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, हमने विश्व के टॉप क्लास सभी लोगों को लाकर टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को सबको बुलाया था, और रेल के हर ऑपरेशन में अच्छी टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की जाए उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को लोग यहाँ रहे, हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वहाँ लोग हमको टेक्नोलॉजी दिखा रहे क्योंकि मार्केट यहाँ पर है। तो हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, ये प्री फैब्रिकेटेड तो मैं कहता हूँ कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इस तो बहुत ही, ये तो इट शुड बी यूज बाय एनीबडी, लेकिन
एक टेक्नोलॉजी के तहत काम करने के लिए रेल में काम करना जरूरी है, और वो भी हम काम करेंगे, ऐसा विश्वास भी आपको मैं दिलाता हूँ। 1000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन 3 साल में हम लोगों ने यहाँ पर कमीशन की, बराबर ना जग्गी जी? 3 साल तक उसको, जग्गी जी को भी मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके टीम ने। तो जग्गी जी अभी रिटायर होने वाले, तो आज का रिटायरमेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये रेलवे ब्रिज अक्रॉस ब्रह्मपुत्रा तेजपुर में भी हम लोगों ने, राजन जी, हम लोगों ने उसको भी सैंक्शन दिया है। न्यू लाइन सलोना टू कुमताई, उसको भी मैं अभी सब नहीं बताऊंगा, राजन जी कभी आपको सब उसके बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे क्या क्या काम किया हम लोगों ने। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले कभी भी जो ध्यान नहीं दिया था, वो ध्यान ही नहीं, तो आज ये हमारे लिए प्राथमिकता बन गई। इसके लिए मैंने उदाहरण आपको दिया कि जब नॉर्थ ईस्ट में सबसे आखिर बात आती थी, तो जब ब्रॉडगेज कन्वर्जन करने की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट सबसे पहला रहा। उसी तरह से एक सबसे बड़ा ब्रिज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, सबसे टॉलेस्ट टावर नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कर रही है, और रेलवे ने कौन करे? हमारे लोग करे, आपके लोग हैं। यहाँ पे रहने वाले भी, उसमें से बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट में उसका जन्म हुआ होगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक नया काम करने का मौका भी रेल के माध्यम से मिल रहा है। इसके आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें आप सबकी सेवा और करने का मौका भी मिलेगा। आज जो अलग अलग परियोजना की शुरुआत की जा रही है, उससे भी आपको लाभ होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और मुझे मालूम नहीं कि 2.5 साल में मैं कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में आया हूँ। वैसे राजन जी, मैं बहुत अलग अलग मंत्रालय में था, हर बार मेरा प्रायोरिटी रहता था कि नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। इसलिए कभी भी आता था तो 8 स्टेट्स में जाता था 2 दिन में। तो अभी ये बार अभी बारिश है, तो कल हमारा अरुणाचल में जाने का हमारा कार्यक्रम है, लेकिन सोचते हैं भगवान की इच्छा होगी तो नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को बढ़ोतरी लाने के लिए पूरी ताकत हम लगाएंगे, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। जय हिंद, जय आसाम। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़े ही आदर के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल असम श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का कि समारोह का मुख्य भाषण प्रस्तुत करें। उद्घाटन समारोह के उद्घाटक माननीय रेलवे मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी, राज्य रेलवे मंत्री माननीय रंजन गोहाइन जी, सांसद माननीय विश्वजीत जी, माननीय सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, एमएलए माननीय कलिता जी, माननीय एमएलए जीएम माननीय चातेराम जी, एचके जग्गी जी, एससी अग्निहोत्री जी, प्रमोद कुमार जी जैन, और आसाम के डीजीपी मुकेश साहे जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आमंत्रित सज्जनों और देवियों, मेरी पूरी पब्लिक लाइफ रही है और मुझे याद है स्कूल के ज़माने में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हम पढ़ते थे, तब देश के रेलवे मंत्री बाबू जगजीवन राम जी हुआ करते थे। उसके बाद में बहुत रेलवे मंत्री हुए, कमलापति जी त्रिपाठी भी हुए, माधवराव जी सिंधिया भी हुए, बहुत कुछ। परंतु आज अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित भाषण आपने आनंद लिया, हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुनी। पहली बार एक टोटल ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार डायनामिक मंत्री रेलवे को मिला है। मैं ये दावा करता हूं, पहली बार राष्ट्र को ऐसा मंत्री मिला है। बहुत कुछ करना चाहते हैं। पहले के मंत्री थे
मैंने कहा ना मेरी पब्लिक लाइफ रही है। जमाना एक ऐसा था, चाहते राम जी, आपको यदि मालूम है या नहीं है मालूम है, मुझे पूरी जानकारी है। रेलवे में गुड्स ट्रेन में जानबूझ के शॉर्टेज की जाती थी और 30-30, 40-40, 50-50 रैक के परमिट देते थे और मंत्री के घर में थैलियां जमा होती थी। ये मैंने जमाना देखा, ये मालूम है। कॉन्ट्रैक्टरों के पीछे चक्कर काटते थे, परसेंटेज फिक्स थे, चाहते कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाता था। आज और बहुत ही किसी ने बोस्ट किया कि हम ईमानदार हैं, पर उसमें भी खामियां हमने देखी। उसको भर्ती करना है तो पूरी खाली जात के अलावा दूसरा चलता ही नहीं, पूरा रेलवे को अपनी जात से ही भर दिया। ऐसे भी हमने केस देखे एम्प्लॉयज। ये पहली बार इस राष्ट्र में रेलवे में हो रहा है। रेलवे तो सबसे बड़ा इस देश का एम्प्लॉयर है, राष्ट्र का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि सही माने में भारत की महान संस्कृति का दर्शन होता है। यहाँ न जाति पाति धर्म का भेद हमारे रेलवे मंत्री के पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल क्वालिटी, competent, they should be selected. These are the instructions, and there is a free hand in the employment. कॉन्ट्रैक्टर का तो आने का सवाल ही नहीं है। Forget online, nobody can dare, प्रश्न नहीं। हमारा सौभाग्य है ऐसे रेलवे मंत्री हमको मिले। नॉर्थ ईस्ट पूरा बड़े गर्व से हम कहते हैं दीज आर सातों प्रांत हैं, 7 सिस्टर्स। और पूरा सबका विकास। और रेलवे तो बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे हमारे शरीर में जिस तरह से धमनियां हैं ना, उस तरह से राष्ट्र की प्रगति में रेलवे का योगदान है। उतना ही योगदान है, उससे कम योगदान नहीं है। जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्रिपल हो जाए बॉडी, वैसा ही विकास रुक जाए पूरा का पूरा। मैं तो हम कहते थे पहले जब पढ़ते थे तब रेडियोग्राम आया था पहली बार, 2 in 1 बोलो तो बड़े फक्र से कहते थे। और आज तो मंत्री जी ने कमाल कर दिया, 4 in 1, 4 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में 4 बातें। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल खोलकर मैं कहता हूं, मंत्री जी ने अपनी कृपा की बरसात कर दी हमारे ऊपर, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत सी योजनाएं, करोड़ों की योजनाएं। मैं विशेष भाषण हो चुका है। एक निवेदन पहला तो ऐसा करूंगा, हमारे आमदार महोदय ने, हमारे जितने भी सांसद महोदय हैं, उन्होंने जो बातें रखी हैं, वैसे हमारे राजन गोहन जी बहुत दिन और रात काम करते हैं। वैसे मेरी मुलाकात नहीं होती, पर कार्यक्रम में इधर उधर रास्ते में आते जाते हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है। हालचाल हम पूछते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, काम में रख देते हैं, फील्ड में ही मुलाकात होती है। मतलब ये जो मैन ऑफ द फील्ड, ये मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इनसे चैम्बर में मुलाकात नहीं। फील्ड में घूमते घामते दिन भर इज एक्टिव, लोगों का काम करने की प्रबल इच्छा है। एक यदि संभव हो तो सुरेश प्रभु जी से मैं एक जनता की थोड़ी सी मांग थी, क्योंकि आप जानते हो आसाम की महान संस्कृति है, महान संस्कृति है। श्रीमंत शंकर देव और माधव देव
कि पूरी छाप पूरे आसाम के ऊपर है। मैंने घुमा हूँ, 30 जिले में मैं घूम चुका हूँ, बाय रोड घुमा हूँ, पूरी छाप मुझे दिखती है उनकी संस्कृति की। इतनी रिच कल्चर है यहाँ का कि भाव विभोर हो जाता है आदमी। सत्र लगे हैं, नामघर हैं, उनके माध्यम से 500 वर्ष पुरानी संस्कृति आज भी फैलाई जा रही है। श्रीमंत शंकर देव का मैं पढ़ रहा था, एक जगह मैंने वर्णन किया, 12 वर्ष तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, यहां से लेके रामेश्वरम, अमरनाथ, सोमनाथ, पूरा वो 12 साल लगे। मैंने एक प्रोमिस खाली ये किया है, प्रोमिस मतलब काम करने का प्रोमिस नहीं किया। मैं जितना वर्ड बोलता हूँ उस जितना मेरे अधिकार में, उससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने प्रोमिस ये किया कि श्रीमंत शंकर देव जिन जिन स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पे गए थे, वहाँ पर एक सुपरफास्ट रेलवे तीर्थ यात्रियों के लिए चालू करने की आपकी जो इच्छा है, प्रबल इच्छा, मैं हमारे रेलवे मंत्री के कान में डालूंगा। इसलिए ये शुभ अवसर पर मैं आपको संभव हो एग्जामिन कराइए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक तरह से सांस्कृतिक क्रांति आ जाए, लोगों की बहुत इच्छा है, क्योंकि इतनी आस्था है श्रीमंत शंकर देव में। कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से तीर्थ में गए, पूरे वहाँ पर पूरा उनका चार्ट है। उस जमाने में तो बहुत तकलीफ से गए, बैलगाड़ियों में गए, नाव में गए, इधर उधर से गए, परंतु आज सौभाग्य से रेलवे का पूरा जाल हो सकता है साल में 2 या 3 बार स्पेशल ट्रेन शुरू की जा सके उन यात्रियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। इस तरह की एक योजना आप गंभीरता से विचार करें, इतना मैं कहता हूँ। पर आपने आज इतना खूब हमको दे दिया है, चारों योजनाएं हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद सोलर एनर्जी पर जो आपका ध्यान है विशेष। बातों में कहा है, आपकी योजना है हर स्टेशन पे सोलर एनर्जी जनरेशन का यदि प्लांट लगेगा तो मैं कहता हूँ भारत में एक अभूतपूर्व क्रांति हो जाएगी। आपका इसी तरह से यश और कीर्ति बढ़ती रहे, जनता के आपके माध्यम से जनता के इसी तरह से काम होता रहे, और गोहाइन जी को आप पूरा साथ दो। हमारे सांसदों की, विधायकों की पूरी बात पर जो उन्होंने आज कहा है कि चिट्ठियों पर आप विशेष गौर करो, और नॉर्थ ईस्ट पर वैसे ही आपका अभूतपूर्व प्रेम है, वैसा ही आप विशेष ध्यान यहाँ की जनता के लिए रखकर जनता की हमेशा आपके माध्यम से सेवा होती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मेरे शब्दों पर विराम देता हूँ, और आज के कार्यक्रम के लिए पूरे जीएम हैं उनको, रेलवे के हमारे राज्य मंत्री को, माननीय मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया है। और प्रेस को जो हमारे सांसद महोदय ने कही है, मीटिंग में जरूरी है, पब्लिक में होना ही चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी अड़चन हो सकती है। परंतु आजकल मीडिया इतना तेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हो सकता है कई जगह लाइव भी चालू होगा तो लाखों लोग देख भी रहे होंगे। प्रिंट मीडिया है, उसमें कल आ जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा है। परंतु आपको तो आश्वासन, मंत्री जी तो बड़े दिल के हैं, आश्वासन ने दे दिया है। अब अगला प्रोग्राम पब्लिक प्रोग्राम होगा, ऐसा इन्होंने जाहिर ही कर दिया है। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सांसदों को, आमदारों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है रेलवे तो कर देंगे, पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जीएम सब लगा देंगे, पंडाल लगा देंगे, हो जाएगा। तो पब्लिक तक पहुंचने का काम, चलिए ये भी एक शुभ अवसर रहेगा कि इस बहाने आप पब्लिक तक तो पहुंचेंगे, पब्लिक को इनवाइट करके इनविटेशन देने को पब्लिक का कांटेक्ट होगा। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। Auditorium. First, commencement of railway electrification work between Rani Nagar, Jalpaiguri and Guwahati. Commissioning of 700 kWp solar power plant at Guwahati railway station. Inauguration of first class and second class waiting halls at Harmuti station. RO plant and digital chart display system at New Tinsukia station.